Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम मुर्तज़ा दावच है. The focus of today's discussion is none other than the SPSC-led CCE 2023's screening test, which was conducted yesterday. As I highlighted in my previous video, the SPSC's CCE is a formidable challenge. Even for those candidates who have excelled in one-paper competitive examinations conducted by FPSC or to say the CSS NPT. This is mainly due to two factors. The number one is the presence of 0.25 negative marking system combined with a need to surpass a 50% threshold. And number two is the nature of the tricky and highly specific MCQs with more than 5 options this time. A, B, C, D, E, which often leave candidates uncertain during the test. Without further ado, let's dive straight into the paper. Firstly, I'd say that the difficulty level of the screening test was slightly above moderate. मुखे काबू कयो माखे काबू कयो माखे टेक दियो माखे सहारो दियो माखे पोते विहारो कंहिं शइ ते. The SPSC, perhaps overlooking that many candidates were from the rural backgrounds, presented challenges, particularly in the English section, and there were some unusual Pakistan affairs questions. अब अगर हम देखें, the commission appears to focus heavily on specific dates and figures in its questions, such as when did Pakistan attend its first NAM meeting as a full-fledged member? According to Article 228 of the Constitution, how many members should the Council of Islamic Ideology have? अब हम ब्रेक डाउन करें अगर सेक्शंस में, तो सबसे पहले सिलेबस में एनोलॉजीज को अलग से लिखा गया था. तो इस बार 6 क्वेश्चंस आए एनोलॉजीज में से, एंड दीज वर नॉट ओवरली ट्रिकी. ये 3 या 4 इसमें से एक इंडियन वेबसाइट थी toppr.com, topper.com, which is being managed by Byju's, वहाँ से लिए गए. जैसे कि meningitis is to the brain, as cirrhosis is to what, तो liver इसका आंसर था. Tomato is equal to bean, cucumber is equal to corn. These belong to what category? तो काफ़ी candidates को लगा शायद ये vegetables हैं, लेकिन ये fruits थे. Alzheimer's disease lead to dementia, so food poisoning will lead to what, तो bloating इसका आंसर था. अब इंग्लिश का सेक्शन देखें तो एज पर द सिलेबस 20 क्वेश्चंस यहाँ से आए कि अ कपल ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड्स आए, 2 instances of one word substitution, several synonyms and antonyms, a few idiomatic phrases along with some grammar questions such as identifying verb and what are the complex sentences. It was manageable but not for everyone. अब हम अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेक्शन को देखें, as I have mentioned before, this section was straightforward this time as well for those who had practiced it thoroughly. 21 से 22 सवाल आए सेक्शन में से, जैसा कि which color has the shortest wavelength, which animal has 4 hearts, what is the outermost layer of sun called, which planet rotates anti-clockwise. मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्वेबल थे. मैं अपने कम्युनिटी में उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर लूँगा इंशाल्लाह. अब करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में जाएं तो टोटल 27 क्वेश्चंस यहाँ से आए. क्वेश्चंस यहाँ से जो थे दैट वर नॉट स्ट्रिक्टली अबाउट रिसेंट इवेंट्स. क्वेश्चन था कि द ईयर ऑफ USSR's dissolution and how many states gained independence, which regional organization is the largest in terms of population and geographic scope. SCO's का आंसर था डबल लैंड लॉक कंट्रीज इन ऑप्शंस में से कौन से हैं, विच कंट्री बॉर्डर्स द SARS, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड एट्सेट्रा. 2 सवाल इसमें से बड़े इंटरेस्टिंग थे और वो ट्रिकी भी हो सकते हैं फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द मैप कि कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी और द स्ट्रेट ऑफ मलाका, व्हाट डज इट सेपरेट एंड जॉइन. अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में. ये सेक्शन काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया क्योंकि क्वेश्चन सेंटर्ड ऑन एग्जैक्ट डेट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेटिफिकेशन, एसेंट and so on and so forth, which are often overlooked by the candidates. Ironically, it appeared that the SPSC was on a deliberate mission to offer an intensive course on constitutional law. 26 सवाल पाकिस्तान अफेयर्स से आए और 3 सवाल जीके के आए जो रिलेटिवली आसान थे. क्वेश्चंस 5 कंसेक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आए
इसके अलावा which regiment has the most निशान हैदर, question about Pakistan's continental shelf, 20-year perspective plan was started in which year, who was the temporary chairman of the Constituent Assembly from 10th to 14 August 1947. In general, candidates who have prepared this paper left and right thoroughly और जो other competitive examination one paper के देते आ रहे हैं और 70 से ज़्यादा अगर वो स्कोर कर रहे हैं तो according to the key they have a very high chance of passing this paper. However, there is a caveat. Despite their competence, some candidates may struggle to surpass the 50% threshold, particularly if they attempt more questions और negative marking की वजह से उनका overall score कम हो जाएगा. तो जैसा कि हम सबको पता है, SPSC has a reputation in making the CCE screening test technically challenging. It's an injustice and it has a passing rate that has rarely exceeded 15% in the last 4 exams और इस बार भी मुझे यही लग रहा है. ये जो अप्रोच है प्रॉब्लमेटिक है MCQs बेस्ड एग्जामिनेशन की. ये आपके रूट लर्निंग को ज़्यादा टेस्ट करते हैं रादर देन योर ट्रू इंटेलिजेंस. तो अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो SPSC शुड कंसिडर लोअरिंग द पासिंग रेशियो फ्रॉम 50 to 40%. इफ़ दैट्स नॉट फीजिबल तो कमीशन को एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी दें बाय सेटिंग अ मॉडरेट पेपर ताकि ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस द प्रोविंसेस को अच्छी तरीके से कर पाएँ. Now, what shall be the future course of action for those who would not make it unfortunately? तो मैं 4 पॉइंट्स आपको जल्दी देना चाहता हूँ. सबसे पहले you should practice with SPSC CCE past papers. आप एक टाइम प्रैक्टिस सेशंस में अपने आप को इंगेज करें टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस. इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके काफ़ी MCQs जो गलत होंगे कॉमनली मिस्टेक्स आप क्रिएट करेंगे उन पे आप ओवरकम कर पाएंगे. सेकेंडली, अब आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए. आप डिफरेंट जो सेक्शंस हैं हर सेक्शन में से जैसे इंग्लिश का सेक्शन है आप रैन एंड मार्टिन की किताब लें ग्रामर सेक्शन को कवर करने के लिए क्योंकि उसके साथ की भी आती है. उसके अलावा फिर एग्ज़ाम वेडा हो गया, पाक MCQs.com हो गया, यहाँ से आप MCQs करें, उनके क्विज़ेस सॉल्व करें ताकि आपको एक थॉरो स्टडी डीप लर्निंग के साथ पता चले. अगर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किताब में से कोर जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं टाइमलाइन जो है हिस्ट्री की वो आपको समझनी चाहिए, इंटरनलाइज करनी चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में ताकि आप जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें कॉन्स्टिट्यूशंस में उनके कितने आर्टिकल्स हैं और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इस बार सवाल आया. प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर्स को आप याद करें और आप ये देखें कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए हैं वो आप याद करें. 18th अमेंडमेंट किस डेट को असेंबली से पास हुई, प्रेसिडेंट ने कब रेटिफाई किया उसको साइन करके. तो ये चीज़ें अब हमें थॉरली पढ़नी चाहिए. आप करंट अफेयर्स के लिए JWT के जो मंथली मैगज़ीन आता है उसमें से पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप वर्ल्ड अफेयर्स जो भी हैं जनरल नॉलेज है वो आप डिफरेंट किताब में से कर सकते हैं. कोई आप फाउंडेशनल एक किताब ले लें जैसे कि कोई भी ले लें GK की अदील न्याज की हो गई, चौधरी अहमद नजीब की हो गई, डोगर की हो गई ताकि आप वो वहाँ से टेक्स्ट बुक से कोई MCQs को पढ़ के और अब जब आप अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे बुक्स में से तो आपके फिर चाहे कोई भी MCQs अगर आपके पास आएगा तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे. और फिर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखें, मॉक एग्जाम्स दें और इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने का तरीका भी आपको आ जाएगा. यू शुड कीप योर स्पिरिट्स हाई. रिमेंबर, फेलिंग टू प्लान इज एसेंशियली प्लानिंग टू फेल. तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें. आप ये अच्छी तरीके से 2 या 3 घंटे अगर आप डेली भी दें तो इंशाल्लाह ताला 3 या 4 माह में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. बिलीव यू मी. तो आप अपने स्पिरिट्स को हमेशा आगे रखें. एंड नाउ फॉर दोज हु क्वालिफाई I will create a follow-up video detailing my personal experience with CCE 2020 afresh. I'll cover topics as how I achieved 80% marks in sociology and my approach to clearing IR paper 1 and paper 2 in which I excelled despite a very low passing ratio, and I'll also offer a range of insightful strategies for thorough preparation within 3 months. I will now end my video with a thought-provoking quote from the poet of the East, Dr. Iqbal. "O hawk, do not be afraid of these gusts of wind that are obstructing you. They are meant to make you fly high." This is for those जो
انفارچونیٹلی یہ پیپر نہیں کر پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے چل کے ایک ایگل کی طرح اپنی آئی فوکسڈ رکھیں گے اور کامیاب ہوں گے. دیٹس اے ریپ. کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ, اینڈ انشاءاللہ I'll see you soon.